تو نہیں لگائیں گے، لیکن ٹاپک جو ہوگا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے راک سے روح کی تجدید تک. راک سے بولیے، راک سے روح کی تجدید تک. دوبارہ بولے، راک سے روح کی تجدید تک، یہ ٹاپک ہے. اور جو مرکزی حوالہ جات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کرواؤں گا وہ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت کو آج ہم ڈیل کریں گے. یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی 12ویں 13ویں آیت کو آج ہم ڈیل کریں گے. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 11 آیات کو آج ہم ڈیل کریں گے. اعمال کی کتاب جس کے رسولوں کے اعمال بھی کہتے ہیں، اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت کو آج ہم ڈیل کریں گے. یعقوب کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی 8ویں اور 10ویں آیت کو آج ہم ڈیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاللیلویہ. تو ٹاپک کیا ہے؟ راک سے روح کی تجدید تک. بولیے، دوبارہ بولیے اونچی آواز سے، زور سے. پریز دی لارڈ. تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کو ایش ویڈنسڈے کی بائبلی بنیاد کی طرف لے کر چلوں گا. ببلیکلی پرسپیکٹو میں، بائبلی تصور میں راک اور توبہ کی بڑی ایک اہمیت ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے. اور یہ ابتدائی کلیسیا نے جو ایش ویڈنسڈے کو مقرر کیا کہ کلیسیا میں یہ رائج کیا جائے اور روزوں کا آغاز راک کے بدھ ہی سے کیا جائے، تو در حقیقت یہ راک ہے کیا؟ راک ہے کیا؟ تو راک کے لیے، کیونکہ پرانا عہد نامہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کنسپٹ ہے راک کا، ابتدائی کلیسیا نے جو رومن کیتھولک ہے انہوں نے جو نکایا کی کونسل جو وہاں پر ترکی میں منعقد ہوئی، تو وہاں پر جو ترتیب بنائی عبادت کے ڈیکورم کو پریزنٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر ایسٹر سے پہلے کے لیے جو روزوں کی ترتیب بنائی گئی، تو ترتیب کچھ اس طرح سے بنائی گئی کہ سب سے پہلا جو روزہ آغاز ہوگا، سٹارٹ ہوگا، وہ راک کے بدھ کے نام سے آغاز ہوگا. راک کے بدھ سے آغاز ہوگا. تو راک کا کیا بائبلی تصور بھی ہے کہ ایسے ہی کوئی چیز کلیسیا میں رائج کر دی گئی؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راک کا کنسپٹ پرانے عہد نامے سے اخذ کیا گیا ہے، ماخذ ہے، نکلا ہے. تھوڑی کو کم کیجئے. تو کچھ اس طرح سے ہے. راک کے لیے عبرانی لفظ ایفر یوز ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کبھی میں اسپیلنگز آپ کے سامنے رکھوں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ پائی صاحب شاید کوئی ایم اے ماری جا رہے ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے بچے بھی ہیں. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ اردو کا جو تلفظ ہے اس کی ادائیگی الگ ہے. آپ فارسی یا عربی یا انگلش یا عبرانی یا یونانی، ان کے تلفظ جو ہیں وہ الگ ہے. لیکن جب ہم اکثر رومن ورڈز میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی پروننسیشنز بھی وہی ہیں. تو یہ ذرا قابل غور بات ہے، اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. تو ایفر لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے جو سپیلنگز ہیں EPHER. ایفر کا مطلب ہوتا ہے راک. یہ اب راک کو اگر انگلش میں کہا جائے تو وہ ڈسٹ کہا جاتا ہے، DUST ڈسٹ. لیکن یہ ہے کہ اگر عبرانی میں اس کو ہم نے دیکھنا ہے تناظر میں، تو وہاں پر لفظ ایفر یوز ہوگا. ایفر کا مطلب ہوتا ہے راک، EPHER، ایفر. اور یہ جو ریفرنس ہمیں ملتا ہے ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی 6 آیت میں، وہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب کہہ رہا ہے. اور کیوں کہہ رہا ہے؟ ایوب کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. یہاں پر راکھ اور خاک کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور توبہ کا بھی ذکر ہے. جب لوگ ابتدائی جو لوگ تھے، جب وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ خاک سر پر ڈال لیتے تھے اور ٹاٹ اوپر اوڑھ لیتے تھے. ٹاٹ انڈرسٹینڈ کریں. اور اس کا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہے؟ فروتنی. علامتی طور پر یہ کیا ایک سمبولیکل ایک باڈی لینگویج کو جو پریزنٹ کرنے والی بات تھی، تو یہ تھی کہ وہ باڈی سے اپنی
प्रेजेंट कर रहे थे कि हम फरोख्तन हैं। क्या है? फरोख्तन है। खाक का सर पर डाल लेना, माथे पे लगा लेना, पुराने अहद नामे के मुताबिक ये फरोख्तनी का इजहार था, ये मातम का इजहार था और ये तौबा का भी इजहार था। हालेलुया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम? इसको समझने की कोशिश करनी। अब यूनानी तसव्वुर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यूनानी लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? यूनानी में राख का तसव्वुर जो है वो मातम और इसके साथ साथ आजिज़ी के साथ जुड़ा हुआ। आजिज़ी यानी कि जब आपने राख डाली तो ये तसव्वुर है कि आपके अंदर हलीमी है, जस्ट रियाकारी की तरह नहीं। रियाकारी बाइबल में हर उस शख्स के लिए, चाहे वो मैं हूं या ये बच्ची जो है मीटिंग प्रेजाइड करती हो, या बच्ची ये टीजा हो, या यहां पर बैठा हुआ अदील हो, विक्टर हो, या आप में से कोई शख्स भी हो, या इस हाथे से बाहर के लोग हों, अगर जो वो कहते हैं और अगर वो नहीं करते, अगर जो वो कहते हैं और अगर वो नहीं करते हैं, तो बाइबल के मुताबिक वो रियाकार है। और रियाकार का बाखुदा की बादशाह में दाखिल होना। क्लियर हो गया? ये बात हमेशा याद रखना। और ये लफ्ज बाइबल में उन लोगों के बारे में कहा गया है जो होंठों से तो खुदा की ताज़ीम करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा की मोहब्बत से, कुर्बत से दूर है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मत्ती रसूल की मार्फ पर लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत। यीशु मसीह अपनी जुबाने मुबारका से बयान करते हुए नजर आते हैं। जो मैंने स्टेटमेंट कही उसकी मैं दलील देने के लिए हूं। जो बात मैंने कही उसकी मैं अब बिब्लिकली रेफरेंस आपको देने लगा हूं। जो बात मैं आपको कहने वाला हूं, यीशु मसीह की स्टेटमेंट मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत। जो मैंने पहले कही रियाकारी वाली, वो रोजे के ताल्लुक से उसके 6वें बाब पहाड़ी वास में हम उसको डील करेंगे आगे जाके, नेक्स्ट जो सरमन्स होंगे। तो वहां पे लिखा है 11वें बाब उसकी 21वीं आयत में, ए बैत सदा, ये इलाके का नाम है। जिस तरह आज ये किकर पीर सटफुल रोड है, इस तरह वो ए बैत सदा, तुझ पर अफसोस, तुझ पर अफसोस, तुझ पर अफसोस। ये अफसोस कोई अच्छी बात नहीं है। ये अफसोस करना किसी के ऊपर अच्छी बात नहीं है। तो यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारका में अपनी बाइबल में लिखा हुआ है यहां पे। इससे पहले एक इंसान मैंने छोड़ दिया, क्या लिखा है? कोई पढ़ दे, क्या लिखा है इससे पहले? ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस। आगे ऐ बैत सदा तुझ पर अफसोस। अब यीशु मसीह अफसोस कर रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? बढ़ते, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत की पॉइंट वर्ड है। क्योंकि जो मोजज़े तुम में ज़ाहिर हुए, अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं उन घर वालों लोगों को, ये अप्लाई करता हूं जो मौज से, जो बरकते, जो लज्जतें, जो एंजॉयमेंट खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है, और अगर आपकी जिंदगी भी बैते सदा की तरह है और आप तब्दील नहीं हो रहे, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब उसकी 21वीं आयत आपके ऊपर कहता है कि अफसोस है तुम पर। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, शालूम पेंटिकोस्टल चर्च के ईमानदारों, अफसोस है तुम पर कि अगर जो बरकते, जो रुपए पैसे, जो एंजॉयमेंट, जो जिंदगी, जो सेहत तंदुरुस्ती अगर मैं किसी और को देता तो वो टाट ओढ़कर और खाक पर बैठकर तौबा कर लेते। हालेलुया। तो अगर देखिए मैं आपको बात बताना चाहता हूं, फालगीर अपनी अकल से फाल खोलता है। क्या कहता है? अपनी अकल से फाल खोलता है।
कौन खोलता है? पूरा सेंटेंस बोला करे ना। फालगीर अपनी अकल से फाल खोलता है। क्या मैंने कहा? लेकिन एक ईमानदार अपनी दुआ से आसमान को खोलता है। मैं आसमान को खोल सकता हूँ आपके लिए, लेकिन खाली नहीं कर सकता। मैं घरों में लड़ाई झगड़े नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि बाल का जिसको मैं बताता हूँ ना, फिर वो अच्छा ही मैं दसना शुरू हो जाता है। तो मैंने आज से ये भी देखा कि मैं को फालगी ना, मैं भी दसी जाऊँ। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि जो मौज से जो बरकत, कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में खुदा ने बरकत ना दी हो? अगर हाथ है ना सही वाले तो पूरे हाथ खड़े करने चाहिए। अगर ते है, अगर नहीं है ना तो फिर ना करना। बरकत सारे को ने ते किन्ने लोग डेली अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं? हर रोज मंगया तो सिर्फ माफी मांगते हो कि तौबा करते भी हो? तौबा का मतलब है अपनी सोच को तब्दील कर लेना। सोचा भी तब्दील हो यानी कि 2025 वाली आई ने, नीयत भी तब्दील हुई कि 2025 वाली है। और गल तो मुश्किल आ गई ना। डायरेक्शन भी चेंज की थी कि उसे रस्ते जो 25 साल 2025 चलते पे उसे रस्ते आज भी चल रहे हैं। तो फिर तौबा कोई नहीं हुई, जिवें तौबा हुई उसकी माफी मिली है। तौबा भी फिर उंजली हुई, जिवें दी तौबा हुई तो माफी भी फिर उंजली। आपको किसी को अदालत करने की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी अदालत करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आईने में हमें साफ ही नजर आता है। कोई यही नहीं कह सकता अब आईने में हमें धुंधला सा नजर आता है। वो पोल से जरा कह रहे हैं, अंडरस्टैंड करें। कहीं खुदावन मुझे वो आईना दिखा जिसमें मेरा अंदर वाला नजर आवे, मैं अंदरों की हूं, मैं अंदरों है की हूं, मेरी असलियत की है, मैं कायल भी है कि नहीं है तेरे फजल दा। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, खुदा यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, अगर वो मोज़े बैत और सैदा मैंने सूर और सैदा में दिखाए होते तो वो लोग क्या करते? वो टाट ओढ़ कर खाक में बैठ कर कब के तौबा कर रहे, कब के करेंगे नहीं, कब के। ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बरकतें अभी तक नाज़िल हो रही है ना, तो वेट ना करें कि बंद हो जाए। हालेलुया। तो रोजा ये लेंट सीजन आपको तहरीक देगा एश वेडनेसडे से कि अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने गुनाहों की सबसे पहले तौबा करें। और किसी ने कहते हैं तौबा कर दो, बहुत गुस्सा करता है यार, बहुत। हमारे चर्च में भी करते हो, हर चर्च जगह पे लोग करते हैं, गुस्सा करते हैं, पता नहीं हमने उनको क्या कोई हथौड़ा मार दिया। नो, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी, ये देखिए कितना खूबसूरत है, राख से रूह की तजदीद तक। तजदीद का मतलब पता चले सिखाते हैं। तजदीद का मतलब होता है, उर्दू लुगत का लफ्ज है, उर्दू जुबान में तजदीद का मतलब होता है किसी काम को जो किया हो उसको दोबारा अच्छे तरीके से करना। एक काम हो चुका है लेकिन उसके ऊपर गर्द पड़ गई हुई है, अब गर्द को हटाएं और दोबारा खूबसूरत तरीके से उसको पेश करें। ये तजदीद करना होता है। कोई भी अमल, कोई भी काम, किसी काम को दोबारा अच्छे तरीके से स्टार्ट करना। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मजबे बिखर चुके हैं, भाई टूट चुके हैं, तो कायम कीजिए, कायम कीजिए, क्योंकि मजबा पे आग जलती रहनी चाहिए। मजबा पे आग जलती रहनी चाहिए, मजबा पे आग जलती रहनी चाहिए। तो अपने मजबूत को तैयार कीजिए, बिखरने से बचाइए। और ये कैसे तैयार होंगे, हम डिटेल से बात कर सकते हैं, अगर किसी को मौका मिले मुझसे पूछने का। वैसे पूछते नहीं आप, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 19 है, बहुत खूबसूरत। तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तो फिर लौट ना जाए, इसलिए गुनाह की पहचान जो है वो आज ही खुदा की तरफ वापसी का जरिया है। लिखा हुआ है कि इंसान तो खाक है और खाक में। तो ये आयत में बयान करती है कि हमें गुनाह की पहचान हो जाए। इंसान गुनाहगार इसलिए नहीं है कि वो गुनाह करता है। इंसान गुनाहगार इसलिए नहीं है कि वो गुनाह करता है। अरे भैया, वो गुनाहगार है इसलिए वो गुनाह करता है।
آپ یہ نہ سمجھے کہ اسی بڑے پاک صاف ہے, کوئی پاک پوک نہیں جی ہے. ساڈے تو پیو دادے پاک نہیں سی, تے انہاں دے پیو دادے پاک نہیں سی, انہاں دی کرتوتاں دی وجہ تو ساڈے تک آفتاں آئیاں. آپ کہیں گے بھائی صاحب پتہ نہیں کہڑے پاسے چلے گئے, اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے, اس سے تمہاری ابدی خلاصی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. تو خدا کی طرف واپسی کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ہمیں ایش وینسڈے دیتا ہے کہ ہم تیاری کریں کہ وہ خدا کی طرف رجوع لائیں. ہاللیلویا. آئے لینٹ سیزن کی تاریخ کے تعلق سے دیکھتے ہیں. ہسٹری آف لینٹ سیزن, تاریخی پس منظر کیا ہے اس کا. دوسری صدی میں ابتدائی کلیسیا نے ایسٹر سے پہلے روزے کا وقت مقرر کیا, اور یہ چوتھی صدی میں رائج ہوا. 40 دن کا لینٹ سیزن باقاعدہ قائم ہوا, جو 325 AD میں کونسل آف نسایا, جس کو نکایا کی کونسل بھی کہتے ہیں, جو ترکی میں منعقد ہوئی, اور اس کو لیڈ کرنے والا ایک ایلڈر تھا جس کا نام میرے مائنڈ میں سے سکپ ہو گیا, رات کو میں نے یاد کیا تھا, لکھنا بھول گیا. باقاعدہ اس کو ترتیب دی, جس میں اے ہمارے باپ رسولوں کا عقیدہ, عبادت میں کھڑے کب ہونا ہے, بیٹھنا کب ہے, بولنا کیسے ہے, یہ نکایا کی کونسل میں, کونسل آف نسایا بھی کہتے ہیں اس کو, اردو میں نکایا بھی کہہ دیتے ہیں. 325 AD میں یہ ترتیب میں ہے, اور اس کا مقصد کیا تھا لینٹ سیزن کا, کہ لوگ توبہ کریں, توبہ کریں, روزہ رکھیں, دعا کریں, خود انکاری کریں, اور مسیح کے دکھوں میں شراکت کریں. مسیح کے دکھوں میں مجھے بتائیے, یہ جو روزوں کے ایام میں جتنا آپ دکھوں کے بارے میں سنتے ہیں, گیت یا گاتے ہیں یا یاد کرتے ہیں, کیا دوسرے دنوں میں بھی ایسے ہی آپ کرتے ہیں اتنا جتنا اس 40 روزوں میں کرتے ہیں؟ تو شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے اس بندے کے لیے جس نے یہ لینٹ سیزن کا اہتمام کر دیا, یہ لینٹ سیزن. اور اس طرح کے بہت سارے لینٹ سیزن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. میرا ایمان اس لینٹ سیزن پر نہیں ہے, میرا ایمان دعا اور روزے پر ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا اور روزے کے بغیر کوئی خادم نہیں ہے. وہ صرف ہڈیاں کا ڈھانچہ ہے, انہوں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے, اور جاوے کسی ڈاکٹر کو ٹیکے لواوے اچھے, تو اتنا صحت مند ہوئے تو پھر روزے رکھے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں خادم ہوں اور وہ دعا اور روزہ نہیں رکھتا, تو میں تو اس کو خادم نہیں سمجھوں گا. میرے سامنے جنہیں میں بڑکا ماری جائے, میں کہوں گا نہ پلیز چپ کر جاؤ, بیٹھ جاؤ, آپ خادم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے سامنے نہیں کہنا ہم خادم ہیں, جوڑا روزہ دعا نہیں کرنا. بعد میں کچھ کہہ دوں گا تو پھر آپ کہیں گے بھائی صاحب ایک گل کہتی ہے. ہاللیلویا. جیڑا بندہ دعا, ہاں وہ تو کہ ہم چرچ میں آتے ہیں, کیونکہ میں خادم ہوں تو دعا نہیں کرتا, تو روزے نہیں رکھتا, تو پیورٹی اس کی خدا کا کلام نہیں ہے, تو پھر وہ یہ یہاں پہ آ کے نا کہ میں کسی وقت بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, میرے پہ رکھنا ہے آپ نے یہ دھیان, میں کھڑا ہو جاؤں گا, تو پھر کہنا میں خدا کی خادمہ ہوں, میں خدا کا خادم ہوں, میں کہنا چپ کرو باجی, مجھے پتا تھا. تو پلیز اس طرح نہیں کہنا, آپ نے کبھی نہیں کہنا. ہاں وہ کہیں, وہ لگائیں بڑھ کے, مزہ آئے گا, فخر ہوگا مجھے ان پہ, میں سلیوٹ کروں گا 2 ہاتھوں سے. جو یہاں پہ روزے بھی رکھے گا, دعا بھی کرے گا, گڑ گڑائے گا بھی, 5 سے 6 بجے تک دعا یا میٹنگ میں بھی آئے گا, اور میرے ساتھ کہ بھائی صاحب میرے کہا آؤ دعا کرو, بھائی صاحب میں تڑے کہا رہا کہ دعا کرنا چاہنا بچہ نہیں, یقین جانے کھانا بھی کھلائیں گے بلیس, اچھے طریقے دعا بھی کریں گے, اور دل میں کیا جگہ ہوگی, اور نہ صرف میری بلکہ یسوع کے دل میں کیا جگہ ہوگی. او خدا کا خادم اے نا بڑکا ماری جانا, مجھے افسوس ہوگا. ایسے ڈائٹنگ کرنے سے ویٹ گھٹانے سے روزہ رکھتے ہیں, وہ روزہ نہیں ہوتا, وہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ دیکھیے اس کو, یہاں پہ نہیں پلپٹ میں نہیں کہہ رہا کہ میں یہ چیز برداشت نہیں کروں گا. کوئی بندہ کہہ دے میں خادم ہوں یا خادمہ, یہ لفظ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, وہ کچھ اور نہیں. جڑا بندہ دعا تے روزہ نہیں رکھتا, یہ پلپٹ سے تعلیم جانی چاہیے. ہمارے پادری صاحب کہتے ہیں کہ خادم کی پہچان ہے جڑا دعا تے روزہ رکھتا ہے. جڑا دعا تے روزہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو خادم کہہ سکتا ہے, ورنہ تجھے جو مرضی نے, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, لیکن کوئی خادم کہلوانے کے لائق نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. 40 کا جو ہنسا ہے بائبل مقدس میں, اس کی اوپر بڑی بات ہوئی ہے, اور یہ بڑا, اور 40 روزے بھی ہیں. ہاللیلویا. اور 40 روزے بھی ہیں. اب عدد 40 جو ہے بائبلی طور پر آزمائش, تیاری, تبدیلی اور نئی شروعات کا عدد کہلاتا ہے. ہاللیلویا. کیا میں نے کہا بائبل کے نقطہ نظر سے 40 کا عدد کیا کہلاتا ہے؟ آزمائش. یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی, آزمائشی دن تھے, وہ آزمائش میں
روس کو بیابان میں لے گیا. لفظ بیابان جو استعمال کرتے ہیں اردو لغت میں غلط ہے, بیابان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا, بیابان ہوتا ہے. تو 40 کا جو حصہ ہے آزمائش, یسوع مسیح 40 دن انہوں نے فاقہ کشی کی اور ابلیس کے ہاتھوں وہ آزمائے گئے. لیکن پہلا آدم آزمائش میں گر گیا, لیکن آدم ثانی آزمائش پر غالب آیا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تیاری کا لیٹ سیزن, ایش وینسڈے سے 40 کا جو سیزن رکھا ہے, یہ تیاری ہے کہ ہم عید پاشکا, عید قیامت المسیح, ایسٹر کو سیلیبریٹ کر سکیں, ہم اپنی تجدید کر سکیں. وہ جو توبہ پہلے کی ہوئی ہے نا, تو توبہ تو کوئی نہیں, توبہ کرا دی ماں پیو دی, بھن بھراواں دی, روحانی لوگوں کو آپس میں لڑا کے, روحانی لوگ کسی دے وجہ تو لڑ پے ہوں آپس میں کہ یار بندے کو سمجھاؤ کہ تہاڈے کو نہیں سمجھا تو میرے کو پھر سمجھنا. تو یقین آپ لوگوں کے لیے, لیکن مبارک ہے لوگ جن کے لیے بحث و تکرار ہو رہی ہے. سمجھ جاؤ, تو روحانی لوگوں کی جگہ کرا دیتے ہو. سمجھو اپنے آپ, لے کے چلے اپنے آپ. گندی لیگیسی نہیں لے کے جانی, ڈرٹی لیگیسی نہیں آنی, اچھی گڈ لیگیسی لے کے چلیں, بائبل کی لیگیسی لے کے چلیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو تیاری کریں, تیاری اور تبدیلی. نوح کا جب طوفان تھا تو 40 دن جو ہے بارش, دن اور رات کیا ہے نہیں ہوتی رہی. بولنے میں آستہ بول رہا تھا, کیا بول رہے ہیں یار. میں آپ کو بتاؤں, میرے ٹیچر بتاتے ہیں ہیڈن اسپرٹس بھی کام کرتی ہے. ڈیمنز چرچ میں آ کے بیٹھتے تو آپ کو بولنے نہیں دیتا, آپ کے منہ کو بند کر دیتا ہے. ڈیمنز ہیڈن اسپرٹس کہتے ہیں, ببلیکلی ٹرمینالوجی ہے, ڈیمونالوجی میں ڈیمن اسپرٹس ہیڈن اسپرٹس کا کام ہے. وہ آپ کے منہ بند کر دیتی تاکہ کلام نہ نکلے آپ کے منہ سے, کلام نہ نکلے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیڈن اسپرٹس, جو ڈیمن اسپرٹس کہلاتی ہیں. ہیڈن نہ دکھنے والی اسپرٹ. میں نے کہا نا کہ 40 دن 40 دن آپ کو پتہ ہے نا, بولے نہیں نا اسی تے تانوں کہ تجھے آپ ہی بولے او پلیز سے تانوں بولنے نہیں دیتا, جے تہاڈے اندر سمایا آ جائے. کڈو انہوں باہر, کڈو. کتنے دن نوح کا طوفان آتا, بولے آپ 40 دن. ہاللیلویہ, تعلیم جائے نکل گیا ہے. ہنیری کے طوفان ایتھے نہیں شیطانہ تیرا زور چل رہا ہے. ایتھے کیوں چلے گا, ایتھے چلنا. میں کٹ دنیا میں بدلوں گا تاڑے دوں ہے نا بولنے والی ہوں. جب آپ چرچ میں آ کے بولتے نہیں نا, کلام کو بولتے نہیں, تو برکتہ کھیل نہیں ہے نا. کلام تو بولا کرے, کلام بولا کرے, کلام بولا کرے. اور نئی شروعات کا عدد ہے یہ 40. تو نوح کے طوفان کے بعد کیا ہوا, زور سے بولے. آج حالے جڑے بولے بدلوں وچ بڑیاں, میں چاہنا نکل جا, میں چاہ اچھی بولو. نوح دے طوفان تو بعد کی ہویا ہاللیلویہ. اور زوردار تعلیم مانو اللہ کا 75% ملے گی. ایتھے نہیں چلانا تیرا زور چلنا, ایتھے نہیں چلنا, ایتھے نہیں چلنا. اپنے کراہت چلائے جو ایتھے نہیں چلنا. کیا بات ہے بیٹھے, کیا بات ہے. پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 12ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے نوح کے زمانے میں 40 دن بارش ہوتی رہی. یہ حوالہ. خروج کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 18ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو موسیٰ 40 دن کوہ سینا پر دعا اور روزے میں رہا اور خدا کا دیدار کرتا رہا. گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 33ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم کے بارے میں لکھا ہے 40 سال بیابان میں وہ سفر کرتی رہی. اور کیا ہوا, سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ایلیا نبی 40 دن سفر کرتا ہے, روزے میں رہا. اور نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یسوع 40 دن بیابان میں روزے کی حالت میں رہا, فاقہ کشی کی, اور ابلیس کی آنکھ کو آزمائش کرتا رہا, آزمایا جاتا رہا. متی رسول کی بات پر لکھا کہ انجیلی بیان اس کا 4واں باب اور اس کی 2 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ریفرنس وہاں پر ملتا ہے. اور اعمال کی کتاب جس کو رسولوں کے اعمال بھی کہتے ہیں اس کا 1 باب اس کی 30 آیت میں جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک یسوع مسیح شاگردوں کو تعلیم دیتا رہا. ہاللیلویہ, انڈرسٹینڈ کرنا. اور پینتیکوسٹل مکاشفہ یہ ہے, پینتیکوسٹل جو لوگ ہیں ان کا مکاشفہ جو خدا نے ان کو دیا ہے کہ 40 کا جو حصہ ہے تیاری کا موسم ہے,
जो पेंटिकॉस्ट यानी अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की कुदरत को लेकर आ जाता है, किस में? कलीसिया में। जब कलीसिया मिलकर पाक लोगों की जमात जमीन पर रोजा रखती है, मातम करती है, गुनाहों की माफी मांगती है, जैसे वो रोजे और दुआ में झुकती है, जमीन पर उसके आंसू गिरते और आसमान उनके लिए खुल जाता है और आसमान से रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। ये तालियों वाली बात है। हालेलुया। ईमानदारों, याद रखना, लेकिन दोस्त ना पढ़ दो। मेरे चर्च में बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ना दूसरों के कपड़े उतारने की बड़ी मजा आता है। हम कपड़े उतारे, लेकिन लदो कोई ताड़े लाएगा ना तो चीका निकलता है। हाँ, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात एक्स्ट्रा सोचनी है, एक्स्ट्रा। ये कुछ आपका माइंड कुछ चेंज हो गया, कुछ हो। मैं है लावा का भी तो पुआ मांगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी शुरुआत है, इसलिए आगे हो चलेगा काम नेक्स्ट संडे के बाद। लेंट की रूहानी अहमियत क्या है? पेंटिकॉस्टल पर्सपेक्टिव में लेंट सीजन की जो क्वालिटीज हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो अहमियत है, वो हम देखते हैं। और वो ये है कि लेंट हमें रिपेंटेंस की तरफ लेके जाता है, तौबा तब्दीली की तरफ लेके जाता है, हमें मौका फराहम किया जाता है। मैं आपको इंकरेज करता हूं, प्लीज इस लेंट सीजन को जाया मत कीजिए। इस लेंट सीजन को महज रोजे जानकर एंजॉय ना कीजिए, जिस तरह के रोजे आप लोग रखते हैं, जो पहले मैं भी रखता रहा हूं। रख लिया ना रखिया तो ना रखिया, बस ठीक है, एंजॉय किया, फाका कर लिया, रोज सोते रहे, कम करते रहे। मैं आगे जब के बताऊंगा कि रोजा सिर्फ फाका कशी नहीं है भैया। अगर सिर्फ भूख बर्दाश्त करते हैं तो आपको देखना चाहिए ये रोजा किसी काम के लिए, रोजा क्यों रखना है। ये सारी डिटेल्स आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा एक 40 दिन का दुरानिया पड़ा हुआ है जो 40 दिनों के ऊपर मुहित है। इब्रानी में जो लफ्ज एक और इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है तौबा के लिए, वो है शव, SHUV, शव। इसका मतलब वापस आना। कहां से वापस आना? खाला दे करो है, मामू दे करो, नानी दे करो, नूर भैणा दे करो, खिंच के ले आओ। तौबा जो करते हैं खिंच के ले आ रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप सुकून से नहीं आए एंजॉय करते हुए। तौबा जो मछली पत्थर चट लेती है ना, ते सब कुछ राजी कर लेती है ना, ते फिर आंदी है, ते फिर बड़ी ना एंज रो के आंदी है। ते तौबा फिर एंज आस्ता एकदम से नहीं ऐसे आ जाती, वो ऐसे खींचा जाता है। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ। ये आस्ता जोर से, क्योंकि आप आना नहीं चाहते और इब्लीस आपको छोड़ना नहीं चाहता। एक तो आप आना नहीं चाहते और दूसरा इब्लीस आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब क्या पाई आने ना तो तौबा बड़ा मुश्किल हो गया। मैं की कीता भी मेरे च की है, वैसे असि कीता की है। मैंने बताया कि इंसान गुनाहगार इसलिए नहीं है कि वो गुनाह करता है, वो गुनाहगार है इसलिए वो गुनाह करता है। आप बुरे हैं, हम बुरे हैं, हमारे बाप दादा बुरे थे, उनके भी बाप दादा बुरे थे, इसलिए यीशु आया भाई, इसलिए यीशु आया। हम भूल जाते हैं, हमें शौक नहीं है इन बातें समझने का। यूनानी में, इब्रानी में शब्द वापस आना, यूनानी में ज़हन की मुकम्मल तब्दीली का नाम तौबा है। और इसके लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है मेटानोया, METANOIA, मेटानोया का मतलब है ज़हन की मुकम्मल तब्दीली, ऐनी के बस पड़ोसी कर लिया तो घर जाके कोई गल नहीं, बस और दुनिया भी तो रखनी है ना, दीन भी तो रखना है ना। मुकम्मल तब्दीली, ज़हन की मुकम्मल, ज़हन जो खराब होया है ना साडा, या तो भैन भरावां ने कीता है या तो माँ प्यो ने बहुता कर दिता है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अपने माँ बाप बच्चों कितनी ना बातें करा मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बाइबल में भी है, और जिन्नी तुम तारीफा करते हो ना अपने जेड़े बाप हो अपने बच्चों की तारीफा दे पुल बनते, वही बच्चे चित्र ला के माँ प्यो लगे होते गल्लां दे। और हर घर की कहानी है। पर्दे पालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो मैं भी जाता हूँ आप लोगों के घरों में, मुझे भी पता है, और मुझे जिनका नहीं भी पता मुझे उनका भी पता है कि वो भी ऐसी करते हैं, सामान तो बखरे नहीं उतरे हुए।
आटे लाए होंगे मां प्यो नाल। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੂ को इसलिए पैदा करना कि मां बाप की गुੱਤ फड़े तो प्यो का गिरबान फड़े, जुत्ती ना ला लो इसी तरह बच्चे ने। खुदा जिसे प्यार करता है उसे तंबीह भी करता है, कोड़े भी लगाता है, डांटे इसको, रोके, तरबियत करें। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेंगी, एक बाप और मां की जिम्मेदारी है कि वो तरबियत करे, और चर्च में एक पासबान की जिम्मेदारी है कि वो रूहानी तरबियत करे। और जो माँ बाप अपने घरों में नहीं करते और जो पासबान चर्चिस में नहीं करते, उनको ना माँ बाप कहलाने का उनकी जरूरत है, और ना वो लायक है, और ना चर्च में पादरी को लायक है कि जिससे आप रूहानी तालीम पाते हैं। फड़ो चित्र नहीं तो कल ताड़े वास्ते और चित्र फड़ लेंगे। मैं आपको नहीं था, माँ बाप कंप्लेंट्स करते हैं मुझे आके, तो मैं कहना तुझे आप चर्च आते हो, बच्चों को कभी संडे स्कूल लेके आए हो चर्चा, कभी टीचर को पूछा जे बड़ी तदीना, कभी टीचर वास्ते ओ आप स्कूल है टीचर भी बड़ा कुछ करते हैं, कोई दूसरी टीचर्स वास्ते कीता है। यहाँ पे बाइबल क्लास होती है, संडे स्कूल होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बाइबल दूसरी में, हमें तो कभी किसी ने इनकरेज नहीं किया। साढ़े बच्चे ने जमदे ही पता नहीं शेर जमे ने, पर ज्यादा प्रभाव तो साढ़े ही घरों जमे है ना। आपकी अपनी ज़हनियत है, आप अच्छे हैं, खुदावंद आपको बरकत है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज घर में तरबियत कीजिए, अच्छी माएँ। किसी शख्स ने कहा कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल देता हूँ। बहनों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर मसीह कौम का एक बहुत बड़ा बोझ है कि आपने अपनी नस्ल को खुदा तक नस्ल बनानी है। आप खुदावंद के अंदर झुकिए ताकि कल को आप किसी दूसरे की नस्ल बढ़ाएं तो वो नस्ल तो दूसरे की हो, लेकिन वो खुदा की नस्ल कहलाए। हालेलुया। मैं आपको दुआ देना चाहता हूं, तौबा कीजिए, तब्दीली लेके आइए और जानिए आप कहां पर खड़े हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या नहीं कर रहे हैं। किस कम लई तू जगते आया, तू की आके खेड़ विच आया। किस कम लई तू जगते आया, तू की आके खेड़ विच आया। जिस रस्ते तू टुरिया जावे ओ रस्ता ते तेरा ते मेरी करना बंदिया कुछ भी इथे भाई तू ते आप अमानत रब दी, तेरा साथ तेरा नहीं। हालेलुया, जोरदार तालीम है। ये मेरे साथी का शेर है, बहुत खुश है। योएल नबी का सीफा उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर योएल नबी खुदा के कलाम के तवज्जुह से वाशगाफ अल्फाजों में बयान करते हैं, अपने दिल को फाड़ो ना कि कपड़ों को भैया। आजकल अजीब सा फैशन है। पहले लोग फटे हुए कपड़े होते थे ना, फटे हुए कपड़े, तो उनको पेवंद लगाकर क्या करते थे, या स्टिकर्स, हमारे जमाने में स्टिकर लगा देते कोट पे या पैंट पे ताकि वो छुप जाए, या रफू करवा लेते थे। पहले के लोग ये थे कि वो क्या करते थे, कपड़ों को अगर फटे हुए हैं, फट जाते हैं तो वो उनको छुपाने की कोशिश करते थे। आजकल का जी फैशन है, चंगिया पड़िया पैंटा के कपड़े आती है और जान के पाट अंदर आवाज आ गई। पहले लोग छुपाते थे, वो लोग एक्सपोज करते थे। हालेलुया, चलो मार दो ताली, बाजी ने कैसे कर रहा है। मैं तो अभी में हरकत कर रही थी। पहले लोग छुपाते सी कपड़े, पैंट पाट गई। हम लोग भी ना जो थे ना, हम वो स्टिकर हार्ट वाला अक्सर या कोई वो ब्रांडेड जो थे स्टिकर्स वो लगा लेते ताकि ऊपर लगे उन्होंने कोड पाया, ये उन्होंने कोड पाया। ठीक है, जो हुण पाटन दा आप पाट देंगे। अब देखो जी, कल यकीन जाने मेरी जानने वाली बहन है, मैं उसको देख रहा था, उसने बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग की थी और टांगे उसकी नंगी नजर आ रही थी और बड़ी अजीब तरीके से खड़ी हुई थी ताकि लत्ता ही नजर आने थे। तो मुझे तस्वीर उन्होंने सेंड की तो मैं उनकी कमा पड़ गई। जो इंडियन फैशन शोज में देखते हैं लोग, मैं भी अन्ना नहीं, मैं भी देख लेना जो यूट्यूब या पे बोलना, मैं मेरी अखां भी है। और तुसी किसी की भैन किसी निगाह ना देखना, तुसी जानते हो तो खुदा जानते। मेरी बीवी के अलावा तो मेरी सारी बहनें और माएँ हैं। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। तो रोजा फास्टिंग, इब्रानी 35 नजरिया, रोजा सिर्फ खाने से परहेज नहीं है बल्कि रूहानी एहसासियत में इजाफा करने का जरिया है। इसकी इंटरप्रिटेशन अगले मैं करूंगा। और आज ये बड़ी खूबसूरत एक ये सेंटेंस
जो मुझे मिला और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसके ऊपर मेरा दिल बड़ा बाग बाग हो जाता है। ये खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी खूबसूरत बात बताई, जिसके ऊपर मेरी खिदमत का इंसार है। मैं कोई कहता है ना, ये एक शेर के लिए मैं अपना सारा दीवान देने के लिए तैयार हूं। यानी दीवान का मतलब होता है जो उर्दू अदब से लगाव रखते हैं, यानी कि शेरा का खजाना, यानी शायर जो होता है उन्हें जिन्हें अशार होंगे उनका खजाना होता है, सारा कुछ मैं तेरे दे दूंगा, ऐ शेर ऐ चीज दे दे। तो ये मेरी खिदमत की जो बेस, जो मेरी मिशन स्टेटमेंट आप समझ लें, मेरी जाति, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और चर्च आपको ये याद होनी चाहिए, मेरी मिशन स्टेटमेंट अब से लेकर हमेशा तक, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, अब से लेकर हमेशा तक ये स्टेटमेंट मैं आपको लास्ट देना चाहता हूं। इक्लेसिया, आप रोजे के बगैर दुआ तो कर सकते हैं, आप रोजे के बगैर दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन दुआ के बगैर रोजा नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते। तालीम जाए जोरदार। अगर कोई बंदा करे तो मैं दुआ करनी है तो रोजा नहीं रख सकता, तो की जाए मेरे की परेशानी है। लेकिन कोई कहे कि मैं रोजा रखना है तो फिर दुआ नहीं करनी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ऐ नहीं हो सकता, ऐ नहीं काम हो सकता। आप रोजे के बगैर दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन दुआ के बगैर रोजा नहीं रख सकते। प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग। आपकी जिंदगी में कुछ के पानी साहब ये कर दे रहे हैं, मोटिव की है, उन्होंने प्रेयर एंड फास्टिंग, बस प्रेयर एंड फास्टिंग। मैंने आपको बताया मैंने बहुत एंजॉय किया है जिंदगी को, मुझे समझ आ चुकी है, मुझे लड़कपन में समझ आ गई थी। 2013 में जब मेरी 18-19 साल उम्र थी ना, तो उसी वक्त में मुझे समझ आ चुकी थी, और अब तो मुझे बहुत ज्यादा ही समझ आ चुकी है। जिंदगी तो बेकार है, भैन ताड़ी है, भरा ताड़े, ए मां ए प्यो, इन्होंने ताड़े कब्रे च नहीं पैना, ताड़े बच्चों ने भी कब्र च नहीं पैना, ताड़ी बीवी ने भी अपनी कब्र च जाना। कितनियां बुढ़ियां मर गई जिन्होंने बंदे मर गए, छो यार। तो बाद चुकी मेरी जानने वाली है, मेरा आलू का बंदा मुकाबले में डर लगता है, मेरे कहती आओ प्लीज हालेलुया, वो डर लगता है, अब तस्वीर ला लो, डर लगता है। मैं की हो गया, पहले भी तो हक कर दी सारा, तो हुन कर लेकिन मौत पै जाएगी। हाँ मुझे डर लगता है, भाई सब दुआ करें घर में, की वही आंदा जिन्हें बच्चे तू पाल रही है। ये ड्रामे ना, रियाकारो बदल लो अपने आप, रियाकारो, रियाकार ने कौन है? जोर से बोले कौन है? अच्छा तुसी नहीं है लेकिन बोलो जरूर, कौन है? रियाकार नहीं सी बन, बड़ा अच्छी काम है। इसको ये भी क्लोज करते हैं, आगे भी कुछ सर्मन्स है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंट सीजन खुदा यीशु मसीह के ये दुखों का सीजन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये लास्ट स्टेटमेंट, काले कपड़े पा लो, अगर आप इस गज से पहनते हो कि दुखा दिन में, तो मैं कहना ईमानदार आप ना करें, सख्त अल्फाज। अगर इसके बाद अगर कोई मुझे कहे भाई सब दुखा देने इसको काले कपड़े पाएगा, फिर मैं बहुत अच्छी बात करूंगा, बहुत अच्छी बात। अगर आपने इस घर से पहने कि आपका दिल करता है तो नो प्रॉब्लम, मैं काला कोट पाया। मैं आपको बात बता, मेरे बच्चों ने कहा कि हमने ना काले सूट पहन लिया, मैंने काली गलो की है उन्होंने जैन शिक्षा यीशु मरिया पे, मैं कहा तुम की यीशु जिंदा है, ये यीशु जिंदा है, जो जिंदा है वही निकाल सकता है। ये तो हम यादगारी के जब अशायर बानी करते किसी काले सूट पा के हमें, अशायर बानी बदन और खून में शामिल होने का क्या मकसद है कि अशायर बानी के मेरी यादगारी के लिए की करते रहना, यही की जरा कुछ मेरे साथ हो रहा है याद करना जे, जेड़े कंडे वाला ताज रखे याद करना, जेड़े मुंह ते तमाचे ताड़े वास्ते खाते ने याद रखना जे, ए जेड़े किला केले ठकवाए ने याद रखने ने, थानू याद रहंदा चलो ओते ये बात है तो चलो ओते ये बात है, ना ना ये वाली तो बात ही नहीं है, ये वाली तो बात ही नहीं है, वो याद रखें यादगारी के लिए। हालेलुया। तो ये लेंट सीजन खुशी का मौका जरूर है, दुखों का मातम का मौका नहीं है। हाँ इब्तिदाई कलीसिया मातम के तौर पर ये प्रेजेंट करती थी, लेकिन पेंटिकोस्टल कलीसिया खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट करती है, वो करती थी, हम एक्सेप्ट करते हैं, किसके साथ? खुशी के साथ मनाते हैं। और दुखों को याद करना है, दुखों को याद करना है, दुखा च पै नहीं जाना, जिन्हें खमा च पै जाता है कि मेरा प्यो मर गया, की करिए चलो बोतल खोल लो, बड़ा दुख है यार, मैंने कुड़ी छड़ गई है, मैंने मुंडा छड़ गया, की करिए बड़ा दुख है, चलो बोतल खोल लो। आपके भाई सब कुछ, मेरी तो जिंदगी ना गुजरी,
मैं तो कलीसिया च भी इंज मिलते रहे, मेरे ते नानके दादके ये होते मेरे तो यार भी नहीं इंज रहे। तो मुझे सब कुछ पता है, मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत ही कुछ पता है। हालेलुया। तो बहनों और भाइयों, लैंड सीजन में तौबा कीजिए और अपनी ज़हन, अपनी सोच, अपने ख्यालात को बदल दीजिए ताकि खुदा आपको माफ करे। बची नहीं है बात की, इसको पूरा मैं बात कर देता हूँ। सेंटेंस थोड़ा बिखरा हुआ है, इसको मैं दुरुस्ती लाजमी कराऊंगा। उसने एक थॉट बड़ा खूबसूरत शेयर किया जो मैं आपको, खुदा आपको मुश्किलात में रखना नहीं चाहता। जोया बात कान खोल के सुनिए जरा। जोया जी, खुदा मुश्किलात में डालना नहीं चाहता, लेकिन खुदा मुश्किलात में रखता भी है। खुदा मुश्किलात में डालना नहीं चाहता, निकालना चाहता है, लेकिन खुदा मुश्किलात में रखता भी है। खुदा के नजदीक चाहता है कि तौबा करे, लेकिन जेड़ा बंदा तौबा नहीं करता फिर खुदा उसको उसी की लेवल पर लेके आता है। लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको उनके तबई कामों पर छोड़ दिया, खुदा छट देता है। कुरिन्थियों कलीसिया में लिखा हुआ है खुदा ने उनके तबई काम, वो जो काम करते पे सी उन्होंने, तुसी नहीं ना मुड़ना, हेलो फिर मरो, हेलो आप आज। तो इसके लिए औकात वाला लफ्ज बेहतर नहीं है, इसके लिए बुरे काम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बुरे कामों के लिए खुदा छोड़ देता, तुसी नहीं ना मुड़ना। अभी मैंने समझाया ना, तुसी नहीं मुड़ोगे, फिर खुदा भी तड़को हाथ चुक लेगा। एक वक्त आएगा मैं भी चुप कर जाऊंगा। फिर जो जान गुनाह करेगी, अंडरस्टैंड करें ये क्लैरिटी। और सेकंड, खुदा मौका देता है, कभी मेरे जरिए, कभी जोया, कभी आप, कभी माँ, कभी बहन भाई, किसी के जरिए मौका देता है। और अगर आप मौका गंवा देते हो, जवानी भरी जवानी फिर नहीं आती, भावें लख खुराका ते ए नहीं जे आनी, आ भी नहीं जे आनी, आ भी नहीं जे आनी। बंदे बन जाइए, नहीं जे आनी, जिन्हें मर्जी। हालेलुया। ये ड्रामेबाजियां। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के जनाब।